Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 3, the noun gender. So let's start. Chapter number 3, the noun gender. The genders of noun are of four types. They are four type के genders होते हैं noun के. First, masculine gender. Second, feminine gender. Third, common gender. Fourth, neuter gender. सबसे पहले हम पढ़ते हैं masculine gender. The words which are used for male person or animals are said to be of the masculine gender. वो words जो हम male person या male animals के लिए use करते हैं उन्हें हम masculine gender कहते हैं. Examples: boy, man, lion, brother, uncle, king, dog, etc. Feminine gender: the words which are used for female persons or animals are said to be of the feminine gender. वो वर्ड जो हम फीमेल पर्सन्स या फीमेल एनिमल्स के लिए यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर. एग्जाम्पल्स: गर्ल, वुमेन, लायनेस, सिस्टर, आंट, क्वीन, hen, etc. Common gender: the words which are used for male and female persons are said to be of the common gender. वो वर्ड्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर. A lot of nouns are used for both males and females. We say these nouns belong to the common gender. बहुत सारे nouns हैं जो हम दोनों के लिए यूज करते हैं तो उन nouns को हम कहते हैं common gender. The word teacher does not tell us whether the teacher is a male or a female. Hence, the word teacher is common for both males and females. Some other common nouns are baby, child, doctor, pupil, lawyer, artist, singer, dancer, student, etc. अब जैसे टीचर वर्ड है तो टीचर तो चाहे मेल टीचर हो चाहे फीमेल हो हम दोनों को ही टीचर बोलेंगे. तो टीचर से आप नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल. तो इसलिए जो टीचर है वो कॉमन जेंडर कहलाता है. ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं, प्यूपिल, लॉयर, आर्टिस्ट, डॉक्टर, ये सभी के सभी कॉमन जेंडर हैं. नेक्स्ट, न्यूटर जेंडर. The words which denote the non-living things and kids are said to be of the neuter gender. वो वर्ड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करते हैं या किड्स को उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए: हॉस्पिटल, स्कूल, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, पेन, टेबल, चाइल्ड, किड, कारपेट, बुक, स्टिक, etc. ये सब न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल हैं. फॉर्मिंग फेमिनिन नाउन्स फ्रॉम मैस्कुलिन नाउन्स. कैसे हम फेमिनिन नाउन बनाते हैं मैस्कुलिन नाउन से? Some feminine nouns are formed by adding ess to the masculine nouns. अगर हम masculine noun में ess ऐड करते हैं तो वो feminine noun में चेंज हो जाते हैं. जैसे masculine feminine. host, host में हमने ess लगाया तो बन गया hostess. lion, lioness. ऐसे ही priest, priestess, shepherd, shepherdess. इसी तरह से poet, poetess, Negro, negress, steward, stewardess, priest, priestess. In some cases, the form is slightly changed before ess is added. और ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें हम ess तो ऐड करते हैं बट उसका जो ओरिजिनल नेम है उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं. जैसे एक्टर है तो एक्टर में अगर हम ess लगा रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे. एक्ट्रेस, ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्प्रेस, गवर्नर, governess, tiger, tigress, waiter, waitress. The feminine of a compound noun is formed by changing the part which shows the gender. अब अगर compound noun है तो उसमें जो masculine से feminine में change होगा उसमें वही part change होगा जो gender को show कर रहा है. जैसे grandfather है तो grand तो as it is रहेगा, father का mother हो जाएगा, grandfather, grandmother. ऐसे he goat, she goat, landlord, landlady, manservant, maidservant, milkman, milkmaid, peacock, peahen. A lot of nouns have different words for their masculine and feminine form. और कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके लिए masculine और feminine के words बिल्कुल differ करते हैं, उनका आपस में कोई connection नहीं होता. जैसे bachelor, spinster, cock, hen, gentleman, lady, horse, mare, boy, girl, brother, sister, bull,
cow, bridegroom, bride, hero, heroine, husband, wife, nephew, niece, son, daughter, uncle, aunt, king, queen, man, woman, monk, nun, lad, lass, sir, madam. Now forget me note. अब हम कुछ important notes पढ़ते हैं. When singular noun changes from masculine to feminine, the pronoun in the sentence also changes. अगर हम किसी singular noun को masculine से feminine में change कर रहे हैं, तो उस sentence में जो pronoun use हुआ है, उसका भी gender change हो जाएगा. Example देखते हैं. First, my uncle went to the town. He was riding a horse. ये masculine में है. तो अब हम इसे फेमिनिन बनाते हैं. अंकल की जगह आ जाएगा आंट. माई आंट वेंट टू द टाउन. अब यहाँ पर ही है. अब आंट आ गया तो आंट क्या होंगी? शी. तो ही की जगह पर शी हो जाएगा. शी वॉज राइडिंग अ हॉर्स. एक और एग्जाम्पल. हिज ब्रदर रीड्स इन मॉडर्न स्कूल. ही गोज टू स्कूल इन हिज कार. ये मैस्कुलिन में है. अब हिज का फेमिनिन होगा हर. हर सिस्टर रीड्स इन मॉडर्न स्कूल. शी गोज टू स्कूल इन हर कार. यहाँ पे हिज कार, यहाँ पर हर कार. नाउ इट्स टाइम टू आंसर. ये एक्सरसाइज है. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. OMR शीट में आप करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे. फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स द. मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है? मेल पर्सन को. ए. नेक्स्ट, इट इज अ फेमिनिन नाउन. इनमें से फेमिनिन नाउन क्या है? बिच. बी. नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन जेंडर. इनमें से कॉमन जेंडर क्या है? मैनेजर, फ्रेंड, मिनिस्टर. तीनों ही मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी. तो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, इट इज अ न्यूटर जेंडर. इनमें से न्यूटर जेंडर क्या है? टेबल, बुक, चेयर. ऑल ऑफ दीज. नाउ बी एक्सरसाइज. राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. इन नाउन्स के आपको फेमिनिन फॉर्म लिखने हैं. मतलब फीमेल फॉर्म लिखना है. फर्स्ट इज एम्परर. एम्परर का फेमिनिन क्या होता है? एम्प्रेस. सेकंड, ड्यूक. ड्यूक का क्या होता है? डचेस. नेक्स्ट, बैचलर. बैचलर का होता है स्पिंस्टर. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ सी एक्सरसाइज. राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. यहाँ पर जो नाउन्स गिवन है उनकी मैस्कुलिन फॉर्म आपको लिखनी है. जैसे प्रीस्टेस, तो इसकी मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगी? प्रीस्ट. सेकेंड, सिस्टर. सिस्टर की मैस्कुलिन फॉर्म ब्रदर. नेक्स्ट, वाइफ. वाइफ की मैस्कुलिन फॉर्म हस्बैंड. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ डी एक्सरसाइज. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर. ऑल्सो यूज नाउन्स एंड प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द जेंडर. अब आपको इन सेंटेंसेस को जेंडर चेंज करके दोबारा से लिखना है और उनके नाउन्स और प्रोनाउंस को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है. तो फर्स्ट इज द लायन किल्ड द सन ऑफ अ शेफर्ड. तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? द लायन का हो जाएगा लायनेस. किल्ड द सन का हो जाएगा डॉटर. डॉटर ऑफ अ. शेफर्ड का हो जाएगा शेफर्डेस. नाउ सेकेंड सेंटेंस. हर नीस एंड सिस्टर वेंट टू सी अ फिल्म. तो यहाँ पर हर का हो जाएगा हिज. नीस का हो जाएगा नेफ्यू. हिज नेफ्यू. एंड सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर. हिज नेफ्यू एंड ब्रदर वेंट टू सी अ फिल्म. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ ई एक्सरसाइज. राइट द काइंड्स ऑफ जेंडर ऑफ द कलर्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस. जो नीचे सेंटेंसेस में कलर्ड वर्ड्स है उनको देखकर आपको बताना है कि ये जेंडर का कौन सा काइंड है. जैसे फर्स्ट है माय फ्रेंड वेंट टू अमेरिका लास्ट नाइट. अब फ्रेंड कैसा जेंडर है?
कॉमन, कॉमन जेंडर, क्योंकि फ्रेंड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। सेकेंड, ट्रीज आर बून टू द ह्यूमन बींग्स। ट्रीज नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर ये होगा न्यूटर जेंडर। वैसे साइंस के अकॉर्डिंग तो ट्रीज भी लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं, बट हम इसको न्यूटर जेंडर में लिखेंगे। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको नाउन जेंडर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।